we will start today welding, and this welding process is used for obtaining joints in metals. The metal may be similar or it may be dissimilar. So when we use welding, is a process by which we can join any two plates of similar or dissimilar metals with the process of welding. It is a process of joining two similar or dissimilar metals by fusion with or without applying pressure and with or without the use of filler material. Means if we pressure it and bring it together, and by heating or by cold, by process, we join this place. So this weld is made between plate 1 and plate 2 by applying pressure or without applying pressure, or by using filler material, electrode in the form of rod, coated or non coated. तो ये जो फिलर आप देख रहे हैं, ये इसमें आप यूज भी कर सकते हैं, और अगर आप ना यूज करना चाहें तो यूज करने की भी जरूरत नहीं है. तो these are the process used for joining metals with the help of welding. Similar metals, by melting the edges without filler metal, is called autogenous welding, where we are joining similar metals by melting the edges without using filler material. Means we are not using filler material, so it is called autogenous welding. Process of joining similar metals using filler rod is called homogeneous welding. Means if the similar metal is joined by using same metal's filler, is called homogeneous welding. Means this plate and this plate of steel and this filler material is also used as a steel. So this process is called, second process is called homogeneous welding. And in autogeneous, this will be similar metal, but the filler metal is absent. Means we are not using filler metal. It is weld on the edges, melting without using any filler. Now, if we join dissimilar metals using filler rod, is called heterogeneous welding. Means this is mild steel and this is, say, any other metal or alloy, and we are joining these by using some filler metal. It will called heterogeneous welding. So third one is heterogeneous welding. In this, filler metal is such that its melting point is
less than the parent metal. अगर सपोज इसका मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो फिलर हम यूज करेंगे उसका यानी कि इस 1000 से कम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर metal must be less as compared to 1000 and 1000. So it should less than 1000 degree centigrade. So it can be at 900, it can be at 950, maybe 800. So the melting point for joining dissimilar metals, it should be less as compared to parent metal which are to be joined. So now we will talk about terminology, elements of welding process. You can see here plate number 1 and plate number 2. This is toe, this place where the weld face is joining with the metal, parent metal, is known as toe. So I have shown this in arrow, these corners, and this face is called weld face. This is the joining place where two plates are matching at 90 degree and it's called root. Fusion takes place here. This portion where you can see is a fused, means this metal and the filler metal which is used has been fused. फ्यूजन के द्वारा आपने इसको पूरा तैयार किया है, तो ये फ्यूजन जोन कहलाता है. और दिस जॉइंट इज कॉल्ड फिलेट वेल्ड जॉइंट. एंड हियर यू कैन सी मेटल की दो प्लेट हैं जिनको आपने बट वेल्ड किया है. बट वेल्ड मीन्स आपने लंबाई बढ़ाने के लिए या इसको ज्वाइन करके इसको इस जगह पे आपने इसको वी की तरह कट किया है और इसको आपने यहां पे एक इसका एंड निकाला है. तो दिस प्लेस इज कॉल्ड रूट ओपनिंग एंड दिस इज फेस, रूट फेस. एंड हियर दिस वेल्डमेंट इज डन with the help of electrode or filler metal. It is known as weld face, and this complete is called fusion zone. So this is butt weld, and these are the terms which are used in welding process while edge forming and joining it by using welding operation, the welding process. Here we are showing you butt welding joint, butt welding joints, edge preparations. Edge means you have to prepare an edge. This is a plate and this is an edge. Again, this is also edge. So you have to prepare properly these edges according to welding specifications. And this is straight because these edges are straight, so we are making this edge prepared straight for joining butt weld by using welding process. This is single V, plate number 1, plate number 2. Here you can see the V notch is there, and here is the opening, root face and root opening. This is single bevel, means only one inclined edge is prepared and another is straight edge, and this is done with the help of welding because root opening, the
fused material after welding will make a joint which will look like this. This is fusion zone, root opening, face, root face, and this is plate number 1 and this is plate number 2, which is weld after preparing edge by fusing the metal of 1 and the metal of plate number 2. So, welding applications. Welding applications. Welding applications. वेल्डिंग एप्लीकेशंस, आपको कहां पे वेल्डिंग यूज करनी है, किस पर्पस के लिए यूज करनी है, क्यों यूज करनी है, तो जितने तरह के आपके ये सवाल हैं वो सारे ही वेल्डिंग के द्वारा आंसर दिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको रिपेयरिंग करनी है, आपने कोई गियर यूज कर रहे हैं और उस गियर में ऐसे ऐसे दांते कटे हुए हैं, एंड हियर इज दिस। तो ये जो गियर आप देख रहे हैं इसमें इस तरह से दांते कटे हुए सब में, और ये आपका गियर इस तरह का है और इसकी थिकनेस है कुछ, जो आपने ये जो दांता देख रहे हैं ये दांता टूट गया, टूट के ये ऐसा हो गया, गड्ढा सा हो गया यहाँ पे। अब ये गियर खराब हो गया, क्योंकि आपके पास गियर दूसरा नहीं है तो आपको इसको वेल्डिंग करना पड़ेगा। जब आप इसको वेल्डिंग कर देंगे और इस तरह से इसके ऊपर मटेरियल बढ़ा देंगे फ्यूज करके, और फिर इसके गियर को जैसा इसका दांता था टीथ उसी तरह की उसमें इसको आप मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा या गियर कटिंग के द्वारा आप इसको दोबारा से उसी शेप में फॉर्म कर लेते हैं, दांते के फॉर्म में। तो दिस पोर्शन बिकम्स लाइक दिस, और ये आपका जो गियर है रिपेयर हो जाता है, रिपेयर्ड। जो ब्रोकन टीथ था इसका दांता, उसको आपने वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा उसी तरह के मेटल से उसके ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल चढ़ा दिया, और उस एक्स्ट्रा मटेरियल को आपने जो गियर का टीथ था उसके अकॉर्डिंग आपने उसको फॉर्मिंग या मेटल प्रोसेस के द्वारा उसको आपने मशीन करके एक रिपेयर्ड टीथ आपने उसके ऊपर तैयार कर लिया, जिससे कि आपका जो गियर था वो वर्किंग के लिए रेडी हो जाता है। यानी यू कैन परफॉर्म बाय रिपेयरिंग द ब्रोकन गियर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वेल्डिंग। इन फैब्रिकेशन, जहां पे फैब्रिकेशन का काम होता है, इरेक्शन का काम होता है, वहां पे भी आप वेल्डिंग यूज करते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर कास्टिंग एंड फोर्जिंग, कास्टिंग एंड फोर्जिंग ना करना चाहते हैं तो आप वेल्डिंग के द्वारा उसको बना सकते हैं। रिप्लेसमेंट फॉर बोल्टेड एंड रिवेटेड जॉइंट्स, रिवेटेड जॉइंट्स वगैरह को आप बोल्ट जहां पे लगाते हैं उसको आप वेल्डिंग के द्वारा परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं, यानी कि फैब्रिकेट कर सकते हैं, और बोल्ट और रिवेट्स को आप हटा सकते हैं। रिपेयरिंग मीडियम है ये, रीयूनाइट मेटल एट अ क्रैक पॉइंट। सपोज किसी मेटल में कोई क्रैक डेवलप हो जाता है, जैसे ये मेटल है और इसमें एक इस तरह का आपका मेटल में क्रैक आ गया, इस क्रैक को खत्म करने के लिए आपने एज प्रिपरेशन कर ली, और ये इतना हिस्सा आपने इसको एज प्रिपेयर करके वेल्डिंग के द्वारा आपने इसको ऐसे और ऐसे करके पूरा ये हिस्सा वेल्डिंग से आपने भर दिया, और भरने के बाद ये जो मेटल था प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, या एक ही पार्ट अगर है तो भी आप इसको कंसिडर कर, इसको फिर आपने यहां से किसी प्रोसेस के द्वारा इसको प्रॉपरली फिनिश कर दिया। तो ये जॉइंट तो रहेगा,
क्योंकि ये जॉइंट वेल्ड से बना है और पेरेंट मेटल्स के गुण इसके अंदर अप टू 90% हैं, तो दिस will give you strength of parent metal up to 90% so that you can use this broken part after repair as a working part. Build up a small part that has broken off, such as gear tooth, or to repair worn surfaces. Worn surfaces जैसे कि आप बेयरिंग की सरफेस है, बेयरिंग की सरफेस जैसे होती है, ये बेयरिंग है और इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये सरफेस पे आपके कई सारी जगह से मेटल खत्म हो गया, खाया गया, यानी कि वो घिस गया और घिस के वहां पे अनइवन सरफेस बन गई। तो अब इतनी बड़ी बेयरिंग अगर आप बदलते हैं तो इट इज कॉस्ट वेरी हाई एंड जरूरी नहीं है मार्केट में अवेलेबल हो। तो क्या करते हैं, इसको आप प्रॉपरली वेल्डिंग से इसके ऊपर ओवरलैप करके थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं और इसको ग्राइंडिंग मशीन पे लगा के आप बिल्कुल इसको फॉर्म कर देते हैं इस वाली जगह को, और ये ओरिजिनल जो बेयरिंग था उसकी तरह की शेप में ये मेटल भर जाता है और अगेन इट गिव्स 90% of this parent metal, and sometime if you have a better experience you can obtain plus 90 so that the bearing works as a new bearing. Now types of welding. First of all we will go for different joints, types of joints. Welding joints. इसको रख कर welding joints. Welding joints. Welding joints, single lap joint, single lap joints. These are lap joints. लैप जॉइंट्स, फर्स्ट इसमें ए इज सिंगल लैप जॉइंट, डबल लैप बी, डबल लैप जॉइंट, टी फिलेट जॉइंट सी, टी फिलेट जॉइंट्स, और butt joints. तो लैप हो गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट butt joints. जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, butt joints, this is butt joint. So single V, इसमें A, single V, butt weld या joint, B, double V, DUBLE, double V, butt weld. ये आपके कुछ वेल्ड्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए. तो ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कुछ. हम लोग जब एज प्रिपेयर कर लेते हैं
और एज प्रिपेयर करने के बाद वेल्डिंग करते हैं तो कुछ जो जॉइंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सिंगल लैप, यानी कि आपने इसके ऊपर दूसरा प्लेट रखा और इस पोर्शन को आपने वेल्ड कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड, ये प्लेट नंबर 1 थी और ये प्लेट नंबर 2 था, तो इसको कहते हैं सिंगल लैप जॉइंट। ठीक है, ऐसे ही डबल लैप में सेम यही रहता है, बस यहां पे एक और वेल्ड हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे डबल में, यहां पे भी आपका वेल्डमेंट बनेगा और यहां पे भी बनेगा। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड डबल लैप वेल्ड और जॉइंट, इसको जॉइंट भी बोलते हैं। जॉइंट, कोई सा एक आप लिख लें। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की या सेकंड की? स्ट्रेंथ ऑब्वियसली जब एक जॉइंट यहां लगाया तो इसकी कम होगी, यहां डबल जॉइंट लगा रहे हैं तो ये पक्का जुड़ेगा। तो दिस इज डबल लैप जॉइंट। नेक्स्ट इज सिंगल वी बट। सिंगल वी बट मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें आपके प्लेट इस तरह से रहेगी और इसमें वी इस तरह से बनेगा और ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 और ये आपका पूरा वेल्ड बन जाता है। ये बीच में आपको वी दिखता है इसमें, और जिससे कि इसमें रूट ओपनिंग जो है, रूट ओपनिंग, और ये जो फेस रूट है, तो रूट फेस और रूट ओपनिंग, और ये आपने फ्यूजन जोन है। तो जब ये फ्यूज हो जाएगा मेटल इसमें तो ये नीचे की तरफ निकल आता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल SINGLE वी बट जॉइंट। डबल में ये जो वी आपने एक कटा हुआ देखा था, उसमें डबल में 2 कटा हुआ होगा, यानी कि एक प्लेट ऐसे होगी, फिर बीच में ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। तो ये जब आपको इस तरह की ओपनिंग मिलेगी तो अगेन इसकी स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में सेकंड, थर्ड मानते हैं इसको, फोर्थ, इसके कंपेयर में इसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी और इसकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें वेल्ड जो जॉइनिंग एरिया है वो आपका इतना बड़ा है और ये आपका वेल्ड से फ्यूज होके मेटल कितनी जगह पे भर जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ये आपका पूरा वेल्ड जोन, वेल्ड जोन और से फ्यूजन जोन। ऐसे ही ये डबल वी बट था, इसका नाम था डबल वी बट जॉइंट। इसमें ये वी की जगह अगर हम यू काटेंगे, यानी कि यू की शेप में, जैसे ये है, अब यू कैसा होता है, यू इस तरह का होता है, और दूसरी तरफ से भी आपने यू इस तरह से काटा, ऐसे इधर से आपने यू काटा और ये यू काट दिया। तो ये जो आपने प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 लिया, तो ये डबल वी बट जॉइंट की जगह सिर्फ एक यू बदल जाएगा यहाँ पे और रिमेनिंग विल सेम, तो डबल यू हो जाएगा। अगर एक काटेंगे तो आपका सिंगल यू,
तो ये डबल V, ये डबल U, ऐसे ही सिंगल U बट जॉइंट। तो आपको ये जॉइंट्स के बारे में आइडिया हो गया। तो ये कुछ नाम है, आप लोग ध्यान से सुन ले। प्लेन बट, सिंगल V बट, डबल V बट, सिंगल U बट, डबल U बट, और इसी तरह से वर्टिकल में भी आप ज्वाइन करते हैं तो सिंगल V, T जॉइंट भी होता है। T जॉइंट्स में आप इस तरह से मेटल लेते हैं और यहाँ पे दूसरा मेटल रखते हैं, और जब आप इसको जोड़ते हैं तो ये आपका मेटल यहां से और यहां तक पूरा आपका जॉइंट हो जाता है। तो ये वेल्डमेंट बन जाता है आपका इस तरह से। तो इसको बोलते हैं हम प्लेन टी, प्लेन टी जॉइंट। और इसमें सिंगल यूटी भी होता है, जिसमें कि आप सिर्फ एक तरफ जॉइंट लगाते हैं, जैसे ये है, और ये आपका दूसरा मेटल है 1, दिस इज 2। तो ये आपको खाली यहाँ पे जॉइंट कर। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, इसमें फोर्ज और प्रेशर वेल्डिंग, जो कि आप लोग स्मिथी में पढ़ चुके हैं। हमने स्मिथ फोर्ज वेल्ड आपको बताया था, जिसको कि हम फोर्ज वेल्डिंग के नाम से जानते थे। उसमें हम क्या करते थे कि कोई से 2 पीसेस लिए और उन दोनों पीसेस को गरम कर देते थे, और गरम करने के बाद जैसे ये वाला हिस्सा गरम किया हमने और ये वाला हिस्सा गरम किया, इधर से प्रेशर लगाते थे, इधर से प्रेशर लगाते थे, और यहां पे हैमरिंग कर देते थे एनविल के ऊपर रख के फेस प्लेट पे। तो ये जो हिस्सा था, क्योंकि ये गर्म होता था, और गर्म होने के बाद आप इसको प्रॉपरली किसी चीज में रख के और इसको बंद करके फिर बंद करते थे, तो ये आपका प्रेशर में होमोजीनियस वेल्ड मेटल का बन जाता था, जो कि ये दोनों मेटल जो है सिमिलर, इन सिमिलर मेटल्स का एक फॉर्म होता था। तो इसको हम बोलते थे फोर्ज और प्रेशर वेल्डिंग। तो दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड फोर्ज और प्रेशर वेल्डिंग। So this is a one type. इसमें it is also known as plastic welding, because we heat the work pieces up to plastic state, except for cold pressure welding, and then the work pieces are joined together by applying pressure on them. No filler metal is used. In this type of welding, we don't use any filler metal. Now we will discuss about fusion or non-pressure welding. Fusion or non-pressure welding. Second, fusion or non-pressure welding. Fusion or non-pressure welding, in this the edges of workpieces are joined and filler metal are heated to a temperature above the metals melting point, and then allowed to solidify. It is classified further
as now. Third one is gas welding. Gas welding, it is a fusion welding process by which we join metals using heat of oxygen, air and fuel gases. It may be acetylene, hydrogen or propane or butane. This mixture is referred as gas welding. Flame is produced, metal at the edges melts and fuses together, and addition of filler metal is used for producing welds. Oxyacetylene flame is most hottest and multi-purpose of all the other gases and oxygen combinations. So you have seen इन मार्केट में आपने गैस वेल्डिंग का काम देखा होगा. कभी कोई व्हीकल में कोई रिपेयर करानी होती है या कुछ ठीक कराना होता है तो आप नॉर्मली गैस वेल्डिंग से उसको जॉइंट कराते हैं या रिपेयर कराते हैं. तो आपने देखा होगा कि उसके पास एक टॉर्च होती है जिसमें वो उसको इग्नाइट करता है और इग्नाइट करने के बाद उस टॉर्च की फ्लेम से मेटल को हीट करता है और जो फिलर मेटल होता है उसको उसके साथ गर्म करके प्रॉपरली आपके जो जॉइंट्स होते हैं टूटे हुए जिनको कि जोड़ना होता है उनको वो वेल्ड करता है. दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड गैस वेल्डिंग. इसमें गैस को कंट्रोल करके उसको वेल्ड किया जाता है. तो गैस वेल्डिंग का जो ऑपरेशन है वो पूरा कर देते हैं इस तरह से. तो नाउ हम फोर्ज और प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस ये हम कितने तरह की होती हैं इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ब्लैक स्मिथ फोर्ज पहला. दूसरा आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. थर्ड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन वेल्डिंग में कर सकते हैं आप. And it can also be done cold pressure welding.
इलेक्ट्रिक करंट को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, हियर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। मतलब आपने मेटल में रेजिस्टेंस क्रिएट किया और इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हीट प्रोड्यूस कर दी, और उस हीट से आपने जॉब्स को वेल्ड कर दिया। तो स्पॉट वेल्डिंग कहलाती है। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, और परक्यूशन वेल्डिंग। These are a forge और प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस को आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग अभी तो आपने देखा था फोर्ज वेल्डिंग का। नाउ फ्यूजन वेल्डिंग using without pressure. In this welding, we are not applying any external forces or process of pressurizing. It is based on fusion of welding. Fusion welding process, fusion or non-pressure welding. इसमें एडिशनल फिलर मेटल इज यूज्ड इन हीटेड कंडीशन। इसमें आप फिलर मटेरियल को यूज कर लेते हैं, और फर्दर ये कैसे क्लासिफाई होता है वो देख लीजिए। इलेक्ट्रिक आर्क, बिजली के द्वारा इसमें आर्क प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हीटिंग होती है। इसमें गैस से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसको हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप मार्केट में देखते हैं, जगह जगह यूज कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, थर्मेट welding. Now the electric arc is further divided in carbon arc, welding, metal arc, metal arc welding, submerged arc, arc welding, inert gas welding,
stud arc welding. Inert is further divided into TIG and MIG. This is tungsten arc, tungsten arc, say tungsten inert gas welding, tungsten inert gas welding, and MIG is metallic inert gas welding, and electric arc is also classified as atomic hydrogen welding. Hydrogen welding. These are the different type of fusion or non-pressure welding. Now, gas welding. Gas welding. Oxyacetylene welding. Acetylene is mixed with oxygen in correct proportions in welding torch and ignited for welding joints. The flame at tip of torch, reaches up to 3300 degrees centigrade temperature, which results in melting most of ferrous and non-ferrous metals and alloys. Filler material rod is used in molten metal pool. To produce the joint or seam for greater strength. Types of oxyacetylene flames. Types of oxyacetylene flames.
Types of oxyacetylene flames. Types of oxyacetylene flames. Welding process and joints are made by controlling the gas flame. जो गैस की जो फ्लेम होती है, जो टॉर्च से बाहर आती है, उसको हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर, जिससे कि हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन के प्रॉपर कॉम्बिनेशन से वेल्डिंग टॉर्च पे जो फ्लेम आती है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। ये एक एक्सपर्ट जो वेल्डिंग करता है उसको इसकी नॉलेज होती है और वो with the time he becomes master in making these controlled flames for efficient welding operations. तो ये the flame at tip of torch reaches up to 3300 degree temperatures और ये आपका जो मटेरियल है उसको मेल्ट कर देता है और जो इसमें हमारी फ्लेम्स हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं, इसमें द करेक्ट फ्लेम जो होती है, जिस तरह की आपको यूज करनी होती है जिससे कि आपका वेल्डिंग प्रॉपर हो, तो सेटिस्फैक्टरी वेल्ड्स बनाने के लिए हमें एसेंशियल होती है कि हम उस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस कर सकें। द फ्लेम मस्ट बी ऑफ द प्रॉपर शेप एंड साइज टू ऑपरेट विद ऑप्टिमल एफिशिएंसी। यानी अगर इसकी फ्लेम की शेप और साइज और उसका जो टेम्परेचर है अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपका जो वेल्डिंग का काम है वो इफेक्ट करेगा और उस पर प्रॉपर आप वेल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये एसेंशियल है कि वो फ्लेम करेक्ट हो और साइज और उसका जो फ्लेम का साइज है, शेप, साइज और टेम्परेचर ठीक हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम्स। 3 तरह की होती हैं। पहला न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम, and third is oxidizing flame। जो न्यूट्रल फ्लेम होती है इसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है या प्रोपोर्शन होता है वो इक्वल होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। यानी कि दोनों की क्वांटिटी सेम रहती है और जो फ्लेम होती है वो न्यूट्रल फ्लेम होती है। इस न्यूट्रल फ्लेम के लिए लिख लीजिए इसका टेम्परेचर 3260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इनर कोन लाइट ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर। और जो फ्लेम होती है
वो इस तरह की होती है। अगर आप ये टॉर्च माने, जो वेल्डिंग वाली टॉर्च होती है, उस टॉर्च से जो फ्लेम निकलती है वो इस तरह का उसका गोला होगा, और जो फ्लेम होती है वो आपकी इस तरह की होती है। और ये जो गोला देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये आपका लाइट ब्लू कलर का दिखता है। और ये टिप है नोजल की, टिप ऑफ नोजल, जो टॉर्च होती है, टिप ऑफ नोजल यानी टॉर्च, टिप ऑफ नोजल, वेल्डिंग टॉर्च। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको ड्रॉ करनी होती है जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स, ऑक्सी एसिटिलीन के बारे में बताते हैं। ये कवर्ड विद ऑक्सीजन एंड एयर। ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और बाहर जो एयर है उससे ये कवर है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन सुपर हीटेड फॉर्म में इनर कोन में रहती हैं। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इतना वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा आपका ज्यादा डार्क होता है एज कंपेयर टू इनर कोर। इट मेक्स नो केमिकल चेंजेस, यानी जो धातु आप जोड़ते हैं, जैसे एक ये धातु है और एक ये धातु है, 1 और 2, ये MS है और ये भी MS है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे, ये जो पूरा आप जोड़ेंगे इस वाले हिस्से को, तो इसमें किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं होता है जब आप न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं। तो यानी कि ऊपर की जो जॉइंट है वो एज इट इज रहता है। तो ये न्यूट्रल फ्लेम कहलाती है। इट डू नॉट ऑक्सीडाइज नॉर कार्बुराइज द मेटल यूज्ड फॉर जॉइनिंग। माइल्ड स्टील को जोड़ सकते हैं इससे, स्टेनलेस स्टील को जोड़ सकते हैं, कास्ट आयरन को जोड़ सकते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम नॉन फेरस मेटल भी इससे न्यूट्रल फ्लेम से, जो कि 3260 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, इससे आप आसानी से जोड़ बना सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कार्बोराइजिंग फ्लेम। ये न्यूट्रल फ्लेम था, नाउ वी आर स्टार्टिंग कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूं, चेंज करता हूं। तो ये आप देखेंगे ये इस तरह का होता है शार्प, और इसके आगे भी एक इस तरह का एक और बनता है। तो ये आपका डबल इस तरह का इसके अंदर फ्लेम कोन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये डायग्राम जो है आप कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज 3000 टू 3050 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इससे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर साइड रहता है। और इसके बारे में लिख लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग हाई कार्बन स्टील्स, वेल्डिंग with
प्रोड्यूसिंग हार्डनिंग सरफेस, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है जो कि ऊपर वाली सरफेस को ब्रिटल और ब्राइट कलर का सब्सटेंस बनाती है, जिसको कि हम कार्बाइड बोलते हैं, आयरन कार्बाइड, उसको प्रोड्यूस करती है। रिड्यूसिंग फ्लेम इसमें होती है जिसके द्वारा हम नॉन फेरस मेटल्स को भी वेल्ड कर लेते हैं, दैट डू नॉट टेंड्स टू ऑब्जॉर्ब कार्बन, जिससे कि उसके अंदर कार्बन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। थर्ड वन इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। Oxidizing flame, it is the hottest flame with the temperature 3650 degree centigrade to 3700 degree centigrade. Much dark blue इसका कोन होता है, जो कि न्यूट्रल फ्लेम से जो इनर कोन है वो थोड़ा छोटा होता है। अगर आप टॉर्च को देखें तो ये जो टॉर्च आप देख रहे हैं, वेल्डिंग की जो टॉर्च है, टॉर्च नोजल, इस नोजल को अगर आप देखें तो इस नोजल पे बहुत छोटा इसका कोन बनता है, और इस कोन से इसके ऊपर फ्लेम भी जो होती है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, इस तरह की फ्लेम होती है, और ये इनर कोन होता है। मच डार्क ब्लू कलर होता है इसका, इस वाले हिस्से का, और मोर पॉइंटेड, ये जो है तीखा होता है पॉइंट, मोर पॉइंटेड कोन, और makes loud roaring ROARING साउंड। जब ये जलती है तो जब इसकी फ्लेम होती है तो उसमें एक आवाज आती है, मेक्स लाउड रोरिंग साउंड, यूज्ड इन कॉपर बेस्ड मटेरियल। जो कॉपर बेस्ड मेटल्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनको जॉइंट या वेल्ड करने के लिए काम आती है कॉपर। और जो जिंक बेस्ड होते हैं वो भी इसमें यूज कर सकते हैं आप, जिंक बेस्ड। जिंक बेस्ड मेटल्स को भी आप जोड़ने के काम में ले सकते हैं इसमें। मैग्नीज स्टील और कास्ट आयरन को भी जोड़ने के काम आता है। मैंगनीज स्टील एंड कास्ट आयरन के भी पार्ट्स ज्वाइंट करने के काम आता है। इसमें ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हार्ड ब्रिटल कम स्ट्रेंथ के ऑक्साइड्स होते हैं, जिनसे कि जॉइंट के ऊपर ये ऑक्साइड्स डिपॉजिट हो जाते हैं। जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस होती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर का मार्किंग होती है, यानी ब्लैक सिलेंडर होता है, और एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है
जो कि मैरून कलर का पेंट किया जाता है। तो ये सिलेंडर के ऊपर कलर कोडिंग होती है, यानी जो अगर ब्लैक कलर का अगर सिलेंडर है तो इट इज फॉर ऑक्सीजन, और अगर वही सिलेंडर दूसरा मैरून कलर का है तो इट इज यूज्ड फॉर acetylene gas. Now what is high pressure high pressure high pressure oxyacetylene welding. It consists of two large cylinders of oxygen and acetylene gas in steel cylinders. High pressure acetylene is dissolved in acetone. जो इसका सिलेंडर होता है उसमें एसीटोन भरा होता है, और एसीटोन में प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिटिलीन गैस को अपने वॉल्यूम से 25 टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अगर उसका वॉल्यूम 100 ml है तो इट कैन एब्जॉर्ब अप टू 2.5 लीटर एसिटिलीन। अपने वॉल्यूम में 2.5 लीटर तक की एसिटिलीन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये अलग अलग प्रेशर्स पे अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से इसमें प्रॉपर्टी होती है। तो इट कैन एब्जॉर्ब अप टू 25 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन इन इट। तो इससे जब आप वेल्डिंग करते हैं तो यू गेट अ वेरी हाई प्रेशर इन द टॉर्च, यानी जो वेल्डिंग टॉर्च होती है उस पे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर पे वेल्डिंग करने की सुविधा मिल जाती है। अगर आपको कोई 1 से 2 इंच की प्लेट काटनी है तो उस प्लेट को कटिंग करने के लिए हाई प्रेशर जो होता है काफी हेल्प करता है। उससे आप आसानी से वेल्डिंग और कटिंग दोनों काम कर सकते हैं। लो प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, यानी कि अगर हम इसमें लो लिख दें यहां आगे, और अभी आपने हाई देखा था, तो लो प्रेशर में क्या होता है, ऑक्सीजन तो उसी कैपेसिटी पे रहती है, उस पे रहती है, यानी कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो आपका सेम रहेगा, यानी कि 150 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतने प्रेशर पे ये रहेगा। और ऐसे ही हाई में भी यही प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का, द सेम प्रेशर विल देयर। बट जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन गैस जो है वो लो प्रेशर पे रहेगी, लो प्रेशर कंपेयर टू हाई। यहां पे हाई प्रेशर रहेगा और यहां पे लो प्रेशर। लो प्रेशर कैसे रहेगा, इसमें हम क्या करते हैं, जो कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ये कार्बाइड के ऊपर हम पानी डालते हैं तो कार्बाइड रिएक्शन करता है और उससे हमें एसिटिलीन गैस मिलती है, जिसको कि हम लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर में प्रोड्यूस करते हैं और टैंक जो फ्लोटिंग होता है उसमें स्टोर करते हैं।
तो ये जो गैस मिलती है हमें लो प्रेशर पे मिलती है और इसको हम हाई प्रेशर की जो ऑक्सीजन सिलेंडर है जो कि हमने हाई प्रेशर में यूज किया था, वही सिलेंडर उसी प्रेशर के साथ लो प्रेशर के एसिटिलीन को यूज करते हैं, जो कि हम लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर में प्रोड्यूस करते हैं और उसके टैंक के द्वारा हम उसको लोकली हॉस के द्वारा यूज कर लेते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर ऑक्सीएसिटिलीन welding, gas welding, and low pressure oxyacetylene gas welding. Now, next turn we will discuss about comparison between AC and DC welding. Thank you very much.